Namaskar, good evening. I hope all of you are safe, all your families are healthy, all your loved ones are healthy. Every one of us is trying to maintain social distancing, and also importantly, everyone is trying as much to help as possible. हमारे गेस्ट हैं वो हैं विराट कोहली. Now for me, he is the most followed and loved personality in our country. Because of the sports he plays, because of the way he plays, because of the way he bats, because of his talent, because of his attitude and aggression on the pitch, because of being a good example, everyone in the country wants to know about him, wants to know as much as possible about him. So without further ado, वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं ट्राई करता हूँ कप्तान साहब को ढूंढने की. Hello, sir. Champ, how are you? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, Champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly. So, before we start, आपने देखा बचपन में जब वो मम्मियाँ नहा धो के तैयार करती थी, बाल एक तरफ और सिर्फ और चलो जाओ तेल लगाकर. तो आज मैं तैयार हो रहा था, मेरी बीवी कहती खड़ी हो, मैं खड़ा. तो इसलिए ऐसा है. A lot of people ask me what's the reason of my hairstyle. This is the reason. So sweet. So sweet. Both How is it going? Very good. All well. Just finished training. Just in time. आपने time दिया हुआ था. मैंने कहा late नहीं करना. Skipper को late नहीं कर सकते. बस पहुंच गए अभी. Just finished training. Just doing a little bit every day. You know how it is. You can relax, but you can never really, go out of shape or off the path that you're on. So yeah, I know that you do it as well. We both try and keep up to it because eventually we have to get back to responsibility. Chaliye, champ, let's start. Okay. So the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household, and I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. So that's when I thought कि यार if you keep going up, you will obviously make a career out of this at some stage because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं. But मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. And I went ahead with it. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते when I ended up playing under 19 India, that's when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to England. तो वो जो tour fee मिला, उसके बाद my father opened an account for me, जाके joint account खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा path इधर जा सकता है as an individual. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहाँ से I think वो जो पहला टूर था, वहाँ से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste
of my time, you know, whatever mehnat I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ, पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए, हाँ, जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ, तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मैं बसों अच्छा। में जाता था, पास अकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए, साइकिल भी थी मेरी, साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मडगाड़। हाँ, कैरियर में किड बैग ठूस के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैक साइड में डाले होते हैं, तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी। बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। Okay. He was practice. I mean, he was a lawyer. और Okay. उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था, he had a chamber. So वहाँ पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहाँ पे गाड़ी में कभी कभी। वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था। डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे। हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या है, स्टाफ है। वो किसका स्टाफ है? फिर एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया, वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा, उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया। नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ, तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ, तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी, चहल यहाँ भी आ गए। हेलो भैया फ्रॉम होम। ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है। कोई बात कर रहा हो, बीच में इसका कमेंट जरूर आए। हद्दी हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसलिए घर नहीं आना वापस। ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके। अरे मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज़ आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गए, कोई अंदर की शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी, जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी। छबील मतलब it's a gathering where everyone comes together, there's a lot of things. नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है। और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। ठीक है, सबको रोड पे पिलाते हैं। हाँ, छोले पूड़ी हलवा वाला होता है, और रोड पे मिल रहा होता है। तो बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं वहाँ पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, बस में भीड़ इतनी थी। अब मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते उसने 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे भागते आ रहा हूँ मैं। खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर, गिलास उधर, इधर। बड़े काम, बसों में बड़े काम में बैठा। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे। हाँ, और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ, और मैं रहता था दिल्ली कैंट में। अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है। हाँ, बहुत पास, सदर बाजार के। सदर बाजार ना। तो वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीरका पकड़ी और चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। मैंने बड़े बहुत वो मजा ही अलग था। हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली अगेन। सो जो चीजें मुझे याद है वो है देख भाई देख थर्सडे को, फॉलोड बाय जबान संभाल के, एंड देन अलिफ लैला, एंड देन चंद्रकांता, एंड देन नया नुक्कड़ ट्यूसडे को। विक्रम बेताल। विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा।
ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार, अनबिलीवेबल। वो 90s का टाइम था, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता। सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली, संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेल के, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी ठंडी। क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के। अरे वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर। अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ उससे। नो आई डोंट, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, आई डोंट सडनली बिकम पॉश विद हिम, बिकॉज़ To me, living life खुल के is the only way to live. Why मैं सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था। तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया। कि how it was in my house कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है। बिल्कुल सर, ये I just read today's back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है, फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं भाई साहब। अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम। सेम चीज है, मेरे को रुका गया, अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी। एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, यू नो, दिस इज हाउ इट वाज। यार हम इसलिए मैं सवाल लेके आया था। पॉलीथिन एग्जैक्टली, आप कह रहे हो बोलने वाला था हमको। हम नाली से बॉल निकाल लेते, मैंने भी, या फिर वो 2 मैंने भी बहुत नाली से बॉल निकाला है। हां, 2 डंडियों से। द बेस्ट होता था 2 होते थे, ये कहता डाल दे, अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा, डाल दे डाल के निकाल। बहुत मजा आता था। तो जब बड़े हो रहे थे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, और जो हम स्पोर्ट्स में थे वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए। सिंपल। ऐसे कुछ दिन याद आता आपको जहां आप लगेगी यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज मे बी डेंजरस और मे बी स्टूपिड, एंड thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? क्या बात कर रहे हो, बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी। हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं। इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं। नहीं, having said that, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे I was very stupid was 15 अगस्त के टाइम, it was 13th August, और वो जो टाइम होता है, every festival by the way is magical when you're living in a society। फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं। तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है सद्दी के ऊपर लगा हुआ है, मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा डोंगर और ये। जिनको समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ, चलो। हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरकड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है, लेके गए हम। तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ
ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे। अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था, तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट। मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से और भाग, तू वो लूट। हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं, तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी। तो क्या कैसा मतलब 2 टेरेस, बीच में आपका स्टेयर्स हैं, फिर अगली बिल्डिंग की 2 टेरेस फिर जुड़ी हुई हैं, फिर बीच में स्टेयर्स हैं, और उसके अगली वाली जो है उसके आगे जुड़ा नहीं हुआ। तो दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेच, तो यू कुड रन थ्रू डोर्स। हाँ, टेरेस पे टेरेस यू कुड रन फॉर 3-4 टेरेसेस। तो भागते भागते पतंग लूटने के जब बारी आई, तो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ पतंग को, तो मेरे दोस्त ने रियलाइज कर लिया कि आगे इसके टेरेस नहीं है, यू नो। तो मैं उस पे भी चढ़ गया था मैं टापने के लिए, तो उसने मुझे पकड़ लिया पीछे से। आगे था नहीं कुछ, छत से सीधा, मतलब क्या ऐसे आपने काम हुए। उस भाई का नाम क्या है? नहीं, भाई का नहीं, मेरा दोस्त था। वही, उस भाई का नाम क्या है? अपने भाई का नाम क्या है? वो जो अपना भाई था, उसने बचा लिया। पीयूष नाम है, वो मेरा एक ही दोस्त था, जो सबसे अच्छा दोस्त था। थैंक यू पीयूष, आपने बहुत कुछ बता दिया इस देश का, वरना गया था। तो ये बात होती थी कि आप बेवकूफी ऐसी एक्साइटमेंट में इतनी कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। और ये वही कर सकते हैं जिनमें कीड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं। तो हमारे साथ भी होते थे। मेरा मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक बार मेरी मॉम ने मुझे सही सूद दिया। कुछ तो किया होगा मैंने, मार खाना एवरीडे काम था मेरा। तो दिन कुछ ज्यादा ही मार दिया, मतलब उस दिन पाइप, हैंगर और बेल्ट तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए। तो मेरे को लगा यार ज्यादा हो गया, मैं क्लास 7 में था। मैंने कहा ज्यादा हो गया यार, ये मुझे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो 2-3 चीज पैक किए मैंने अपने बैग में, 20 रुपए थे मेरे जेब में, मैं निकल गया। बस स्टॉप तक पहुंचा, दिमाग में आया कि यार 20 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या चुपचाप आ गया। मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मैं कहीं गया नहीं हूँ, कोई नहीं आता, कोई नहीं। अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा, कोई आया तो नहीं। पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है। मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं। मेरी माँ, मैं अंदर गया, मम्मी कहती क्या हुआ, घर छोड़ के गया, वापस आ गया? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तूने बैग पैक के तू चला गया, मेरे को तो चले जाएगा, तू गया क्यों नहीं, चल निकल निकल। मैंने कहा मम्मी माफ कर दो यार, मैं मजाक कर रहा था। मम्मी का नाम लिया देखो। मैं ममता मॉडल में था, विकासपुरी में, तो मैं हॉस्टल में रहता था। वैसे लड़ाई मतलब डैड ने कहा तू, मैं आई वाज इन एपीएस, a better school study wise, but I really wanted to play football and football was big in ममता मॉडल। तो मैं टीसी करवा कर बिना बोले टीसी लेकर अपने स्कूल में ममता मॉडल में भर्ती हो गया। मेरे डैड आए आर्मी से वापस एंड ही वेंट मैड। तो घर में बहुत ज्यादा रोना वोना हुआ, मम्मी बहन रो रही है, डैड कह रही है, वो वगैरह वगैरह जो भी है, बट बाद में सॉल्व हो गया। तो मैं ममता मॉडल में था, हम लोग हॉस्टल में थे, दिल्ली में रहते हुए भी मैं ममता मॉडल में था। तो लड़कों ने जुगाड़ निकलवाया कि भाई शादियों में सिर्फ पैंट शर्ट की जरूरत है, तो 2 लड़के फुटबॉल टीम से निकलेंगे, शादी में जाके नाचेंगे, हाँ हम शर्मा जी के बेटे, हम ये है, खाना भर के पूरी टीम के लिए ले आएंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे शादी होती है पूरे वेस्ट दिल्ली में, विकासपुरी में, तिलक नगर में, उत्तर नगर में, लड़के चले जाएंगे। तो मैं कभी नहीं आता था, मैं उनको प्लानिंग बताता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तू चले जा। मैंने कहा तू मुझे देख, मैं कहाँ से बोलूंगा भाई कि मैं शर्मा जी का लड़का हूँ, मुझे मेरे को नहीं मानने वाले कि मैं शर्मा जी का लड़का। एक बार इनको पकड़ लिया, 2 को इतना मारा इन्होंने, किसी ने पकड़ लिया इन दोनों को। उसके बाद से फिर वो सिस्टम भी बंद हो गया। हम भी बहुत गए खाना खाने। मेरा एक स्पेशल पैसे इकट्ठे करके कपड़े खरीदे थे शादियों के लिए, जो मतलब लगे इनविटेशन ना मांग ले, पैसे वाले कपड़े। हाँ, मतलब लगना चाहिए कि ये जान पहचान वाले ही होंगे। अगर कपड़े थोड़े नीचे के हुए तो पक्का बोल देंगे किसने इनविटेशन दिया। सवाल आ जाएगा कि पूछे ना कोई, एंट्री कपड़ों पे है, हाथ में कुछ होना हो, पैर छूने पड़े तो छू दो एक दो, उसके बाद चलो स्ट्रेट पैर छू के आ गया, पैर छू के आ गया। I talk to a lot of people that are around you, including, I won't take the players' name, but few players, few people that know you. Let's not drop names, but all of them said that the aggressive attitude that you see on Virat when he's playing, he's very calm when the game is over. You will hardly see him losing calm. And now I get the point, because when you say I just want to give him 100% and that's my work, rest, is it also because of that? Because you know I've given my 100%,
You will win and you will lose. That's the nature of the game. Yeah. And then you're calm and you can sleep better because you've given 100%. Yeah, that is my output of giving more than 100% every time I go on the field. And it doesn't finish when I'm batting. Batting में फिर भी आपके सामने एक target होता है. You should be able to give 100% when you're fielding a ball. कि एक run भी नहीं जाना चाहिए extra. Bloody hell, if I scratch myself, I scratch myself. But if I don't give my 100% in a 50 over ODI, from first over to the 100th over, एक ball पे अगर आप full अपना पूरा effort नहीं दे रहे हो, even when I'm sitting outside clapping for someone else, it doesn't mean कि batting नहीं हुई या fielding में हो गया तो दिन खत्म हो गया. नहीं. The day ends when you pack your bag and you sit in the bus. Yeah, the and that's what before that. And that's what Chahal told me, and of course I have to take his name because he's here. That वो उनके वर्ड्स में वो आगे से इतना कुछ करते हैं कि हमें अपने आप फॉलो करने का मन करता है. और विराट भाई को मैंने कभी गुस्सा होते देखा नहीं है. वो कभी मैच हारने के बाद चिल्लाते नहीं है. वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं, अपना बेस्ट दो. और फिर मैंने उनको और खरोदा कि कभी तो गाली देते होंगे, कभी चीखते होंगे. कहते नहीं, कभी नहीं चीखते हैं. और उसने एक और अच्छी बात बोली कि विराट कोहली के पास आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब लेके जाते. हाउ ट्रू इज इट? सी, ये चीज over a period of time आप realize करते हो, and I have always said this because of I wasn't this person always. Yeah. I truly believe that everyone has a giving, a compassionate side to them, but there always is an individual that comes in your life who brings it out. And True. for me, meeting Anushka was that moment where, you know, I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are, and you become confident of giving, of being compassionate. हमारे टीम डॉक्टर थे, डॉक्टर संदीप, इंडियन टीम में. वो अभी शायद केला बासा के साथ है. तो वो मैच देख रहे थे and he was new to football. He's also very good with diet and how to take care of a body. We were watching football and we were all talking about Ronaldo. तो उन्होंने बहुत नाइवली मुझे पूछा कि यार क्यों नहीं रोनाल्डो बन सकते हमारे देश में. तो मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि सर, द लेवल ऑफ फुटबॉल इज डिफरेंट. आई कांट इवन स्टार्ट कंपेयरिंग. तो उन्होंने अगले दिन मुझे एक बात बोली कि ओके, इंडिया में रोनाल्डो जैसे प्लेयर नहीं बन सकते, बट वो क्या खाता है, किस तरह ट्रेनिंग करता है और कितना अपना बेस्ट देता है, वो तो कर सकते हो. सो ही वेंट बैक एंड डिड द सर्वे ऑफ व्हाट रोनाल्डो डज, एंड ही केम बैक एंड ही सेड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टू गिव योर 100% and to eat right and to sleep well is something which is in your hand. You might not be able to play like Ronaldo. Yeah. But here is a blueprint where if you follow and if you work really, really hard every day, this is what you can achieve to your best of ability. Yep. And I will never forget that. And that I can He's see with the way you handle your diet, your routine, you know, your discipline now. And I understand where you come from. You need to lead and you need to set the vision right for everyone else to also do that, so that the level of football collectively goes up. True. And to take that responsibility, you need to live your life like that, which will be more difficult, filled with more challenges, but that's the part of the game. And I see you do that as well, and that's hence we share so many workout videos, and you know, meals की भी photo डालते हैं, cheat meal की भी डालते हैं, क्या खा रहे हैं. यार देख लो, अगर अपनी प्लेट में कुछ खराब पड़ा हुआ दूसरे ने हेल्दी डाल दी तो प्लेट ही बंद हो गई. हेल्दी लेके आओ. मेरी बीवी परेशान होगी. उसने अपने फोटो भेजा ब्रिंजल्स के, तो मैंने कहा ये देख ब्रिंजल्स पड़े हुए हैं और थोड़ा सैलड है. ये कहती रोटी का है. मैंने कहा यार खा लिया होगा. कहती कसम से वो रोटी नहीं खा रहा है. मैंने कहा यार नहीं खा रहा होगा. कहती रोटी नहीं खा रहा है, ऐसे बोल रहा है. The planning of a vacation and organizing starts from Anushka and ends at Anushka. Yes. और ये भी कहा गया हमें सूत्रों ने कि उसका एक इनपुट आता है कि वहां पर जिम होना चाहिए. But the first time when you were planning your vacation, how was the conversation like? यार देखो, प्लानिंग की जहाँ तक बात है, जिसको ज्यादा समझ, जिसको ज्यादा आइडिया हो, वही प्लानिंग करेगा ना. हमारा क्या, हमें तो यहाँ से अब कुछ समझ भी तो आनी चाहिए कि चीजें, माहौल कैसा होगा, क्या कौन सी जगह अच्छी है घूमने की, क्या खाने हैं जो अलग भी खा सकते हैं. हमें तो वही चीज रोज भी खिलाते हुए कुछ अकल ही नहीं है कि कुछ और भी ट्राई करना है, कुछ और करना है. तो जिसको ज्यादा समझ होती है जिस चीज की, उसको वही करना चाहिए. हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए.
ये वो एक बात ये भी ट्रू है। सबको समझ आनी चाहिए। तो शी इज मच बेटर एट figuring out places that we both will like, and yeah, she's absolutely precise. उसको सब पता है अनुष्का को कि भूटान में आप दोनों जॉगिंग कर रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज दी विराट, आपने अपने धर्मपत्नी को छोड़ के स्प्रिंट मार के भाग गए, ये क्यों? यार ये कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाई आपने? ये तुमने कब बताया है? अच्छा मुझे पूछा जा रहा है कि लाइव कब जा रहे हो, क्या हुआ है? कुछ जैसे पता ही नहीं था कि लाइव में क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो यार ये बीबी जी ने सारा प्लानिंग कर लिया, आपको भूटान ले गए, एवरीथिंग इज वेल डन, यू बोथ आर जॉगिंग, एंजॉयिंग साइक्लिंग और व्हाटएवर। पीछे से किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कि पीछे किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कौन आ गया, आपने अपनी बीबी छोड़ के भाग गए। अरे नहीं भाई, वो यार ऐसी बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो यार? यार तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है यार? एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो यार, आप एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो। She thought कि मैं घूम गया हूँ। She thought I'm lost. हुआ क्या वहाँ पे ना, अब हम बड़ी डिस्क्रीटली गए थे, तो वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हुए थे, और जो हमारे गाइड थे वो पीछे अनुष्का के साथ बाइक के पास थे। तो मैं बाइक पे था, तो मैं थोड़ा आगे चला गया क्योंकि मेरी बाइक तेज चल रही थी, मतलब मैं चला रहा था, अपने आप तो चलेगी नहीं, मैं चला रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे ना भीड़ थी, तो वहाँ भीड़ में किसी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और किसी ने आवाज लगाई कि ये तो वो लग रहा है। मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी, मैंने ऐसी स्पीड पे भगाई है साइकिल की, मतलब रेस खत्म करनी है, और मैं इतनी आगे पहुंच गया, और मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये तो आ ही नहीं रहे। तो पीछे जो एक गाड़ी थी जो हमें जो कहीं पे भी रुको, तो उन्होंने बोला जहाँ आप थक जाओगे गाड़ी में साइकिल डाल के हम वापस ले जाएंगे। तो वो गाड़ी रुकी, वो आ गई गाड़ी पे, मैंने कहा मैडम कहाँ है? वो तो पीछे। फिर मैंने यू टर्न मारा, मैं तो गया, कहा मैं तो बहुत आगे आ गया। एक लास्ट आप फैन से कुछ बोल दो यार, मुझे गाली देंगे, अपने फैन से कुछ बोल दो। फैंस तो दोनों के ही आए हुए हैं। I hope कि जो फुटबॉल फैंस हैं they enjoyed the conversation. I hope जो क्रिकेट फैंस हैं they enjoyed the interaction. And the lesson for us on a daily basis, living the lives that we live in our professions, anything that we do, I'll only say one thing कि खुल के जियो, enjoy what you see, things that you watch, things that you listen, enjoy it with an open mind, and just see good in everything and everyone. That's all, and I hope you all loved it, because we had a ball talking to each other, and we'll do this again sometime. Cheers Virat, thanks a lot.